हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। कम्युनिज्म, कास्ट एंड रिजर्वेशन हियर देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर पॉइंट अराइव द रोल ऑफ द कास्ट इंडिया सोसाइटी। व्हाट इज द रोल ऑफ द कास्ट इंडियन society? There is a most important topic arrive here, and there is a third point. The political process of any society is influenced by their nature of society. To understand the nature of society, where we study is the social structure. India's social culture is best understood in the term of caste system, and wherein the caste is a hierarchical is arranged. Over the year, the caste system developed into an elaborate system to maintain is a social economics inequality in the society. Individual born in and the belonging to a lower caste and the outer caste suffering from many disadvantages, and where is oppressed and exploiting by their upper caste. The condition of the outer caste of Dalit was the particularly is the pathics. The practice is the untouchability, epithelialized and their condition. In the typical Varm Vyavastha, there is a four Varn. There is a most important Varn Vyavastha. There is a Varn here for the Brahman, their perished, and there is a equivalent class. Kshatriya, warriors, and the ruling class. Vaishya, the producing class, is a peasant and artisan. And Shudra here, those who is performing is the manual and the political job. And the one must note there that is the Varn Vyavastha is provide more the theory than the actuality of the caste. In the relative, there is a note for but thousand of caste and jatis in which there is the caste system is organized. It is a possible the necessaryness of the classify most of the jati in accordance with there is a birth is discriminations, though that is easy to be done at the extreme ends of the social spectrum. Then at the middle ranges, in other words, the birth system is related to the jati in that give to the holistic framework in which is any jati will be fit. That is the most important first point. And second here, a caste is a localized a group having traditional association with their occupation. The principle of birth form or exclusives is based on membership in a caste group. Accordingly, in the choice of the occupation is not open, but it is determined on the basis of the birth in a caste. In addition, caste group have a rules is a governing is the food and marriage. The group is a defined rules and the behavior for it is a member and the exclusive some degrees of authorities and over them including the right to be expelled those who is a live in the authorities. The caste as a group identity is however got a strengthness in the new context of the modern idea and institution. This happened because it is because one of the basis of the political mobilization among the many castes and classes before during the freedom struggle and afterwards. The social religious movement of the 19th century had made the lower caste conclude there is the backward condition, and also there is a right that has been to the denied to be them over to the centuries. As a result, many amongst them to the were no longer prepared to accept their inferiors status as a diversity is ordinance. In the backdrop of there is the awakening, there is introduction of democratic principle of governance. The emergence of the party as a centralized politics and the attempt of their rule is mobilize their lower and the outer caste along with the Muslim in it is a support to the threat there is a growing national movement. All the combined to the prepare growth for the politicalization of the caste. By the time India again to independence, the backward class is because of the politicalization had become a force to be reckoned with. There is a claim and demand could not be longer to the ignored. At the same time, the nationalist is a leader, where also is a community to be tasked of the improving their condition.
In light to above, the Constitution marker in joining the upon to the new state to take a positive measuring for the bearing of the backward classes at the par with the rest of society. They realize that is without the positively interventions, there the state it would be not be possible to remove their historically accommodated backwardness. The policy of the reservation for the backward class needed to be understood in this context. The backward classes refer to three categories of the people: the scheduled caste, scheduled tribes, and the other backward class means OBC. यहाँ पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर है जिसको हम कर रहे हैं, उसका जो अगला पॉइंट है भारतीय समाज में जाति की भूमिका। देखिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम भारतीय समाज में जाति की भूमिका के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत समाज में जाति की क्या भूमिका रहेगी। बात अगर हम करें यहाँ भूमिका की तो ये बात साफ हो जाता है कि किसी भी समाज की राजनीतिक ढांचा उस समाज की प्राकृतिक से प्रभावित होती है। समाज की प्राकृतिक को समझने के लिए हमें सामाजिक जो है संरचना को समझना होगा कि सामाजिक संरचना होती कैसी है। भारतीय समाज संरचना को जाति प्रथा के रूप में जो है अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि हमारे जो है किस तरह के जाति हमारे समाज में प्रेजेंट है। जहाँ जाति के अंतर्गत प्राचीन वर्ण श्रम व्यवस्था सम्मिलित होती है तो कई वर्ष का जो है जाति व्यवस्था का विकास समाज में सामाजिक आर्थिक असमानता को बनाए रखने के लिए होता ही रहता है। यदि कोई व्यक्ति किसी छोटी जाति में उत्पन्न होता था तो उसे बड़ी जातियों द्वारा परेशान किया जाता था और उसे अन्य अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ता था। दलितों की हालत बेहतर थी, छुआछूत के व्यवहार से उनकी दशा और भी खराब होती चली गई। जो बहुत बड़ी विडम्बना भारत के लिए था पहले कि ऊंच नीच की भेदभाव जो थी जो वर्ण व्यवस्था के रिगार्डिंग होती थी, जहाँ पर जो है छोटी जात में कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता था तो उसको बड़ी जाति के लोग जो थे सदैव ही परेशान किया करते थे, उनके शोषण किया करते थे और उनको कई तरह की जो है सुख सुविधाओं से वंचित रखते थे। अगर हम यहाँ देखें परंपरागत जो है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण उस समय आते थे। आपको पता है कि ब्राह्मण जिसमें पुजारी और शिक्षित वर्ग ही आते थे जिसको हम जो है मुख से निकला हुआ आवाज़ कहते थे, यानी ब्राह्मण को मुख के रूप में देखा जा सकता है जिसमें पुजारी शिक्षित वर्ग होते थे। क्षत्रिय की बात होती थी जो कि योद्धा और शासक वर्ग होता था जिनको हम बाजू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वैश्य को जो है व्यापारी एवं वर्णिक वर्ग होता था जिसको हम पेट से रिप्रेजेंट कर सकते थे, यानी ये व्यापारी करते थे, वर्ण करते थे। और क्षुद्र जो होती थी तुच्छ और प्रदूषित युक्त कार्य करते थे, यानी सभी जातियों को जो है पोषण करना, सभी जातियों के लिए कार्य करना क्षुद्र के अंतर्गत आता है जिसको हम जो है चप्पल जूते से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो इस तरह से जो है उस समय इसका 4 वर्णों में विभाजित किया जाता था, यानी मुख से निकला हुआ कोई भी वचन ब्राह्मण के लिए होता था, ठीक है, जो बाजू से संबंधित क्षत्रियों के लिए होता था और पेट से संबंधित वैश्यों के लिए होती थी, और क्षुद्र को जो होता था पैरों से निकला हुआ जूते के समान समझा जाता था। तो इस प्रकार उस समय जो है वर्ण व्यवस्था अपनी चरम सीमा पे थी और समाज में ये विद्यमान भी थी। यहाँ हमें यह समझ लेना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था जातीय वास्तविकता की बजाय ज़्यादा सैद्धांतिक है, यानी ये बात साफ हो गया है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो था जातीय वास्तविकता के बजाय ज़्यादा ही सैद्धांतिक थी। वास्तव में 4 ही जाति नहीं बल्कि हजारों जातियाँ एवं उपजातियाँ थीं जिन पर जाति व्यवस्था आधारित होती थी। अधिकांश जातियों का वर्गीकरण वर्ण पर आधारित किया जाता था और हालांकि ऐसा करना सामाजिक संरचना के अंतिम छोर पर असामान्य होता था, न कि मध्य में। दूसरे शब्दों में वर्ण व्यवस्था जाति से संबंधित हुआ करती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है समाज संरचना के अंतिम छोर के रूप में देखा जा सकता था कि ठीक है, जाति एक स्थानीय समूह होता था जो किसी भी व्यवसाय विशेष से जो है पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ होता था। जन्म का सिद्धांत जातिगत समुदाय में सदस्यता का एकमात्र आधार माना जाता था, अर्थात व्यवसाय का जो है चुनाव स्वतंत्र न होकर कि जाति में जन्म लेने के आधार पर निर्धारित होती थी। यानी उस समय व्यवसाय जो होती थी जाति के आधार पर होती थी। हम कोई भी जो जाति में जन्म लेते थे उसी जाति का जो कार्य था अपनाना पड़ता था, लेकिन यह आधुनिक समय में सब बदलाव हो चुका है। इसके अलावा इस जातिगत समुदाय के अपने खान पान एवं विवाह संबंधी नियम होते थे। समूह ही अपने सदस्यों के रहन सहन के नियम बनाते थे, यानी उनके समाज ही रहन सहन के नियम निर्धारित करते थे।
जो उनके निर्माण नहीं मानते थे उन्हें जाति बरादरी से निकाल जाने के भी अधिकार समुदाय के पास होता था। यानी आपको रूल रेगुलेशन मानना पड़ता था। अगर मान लीजिए आप थोड़ा पढ़ लिख लिए, समझ गए, तो अगर आप जाति से अगर आप किसी प्रकार के अगर आप नियम को उल्लंघन करते हो तो जाति जो होती थी उसको जो है समाज से बहिष्कृत कर दी जाती थी, यानी समाज से उसको जो है निकाल दिया जाता था। आधुनिक विचारधाराओं एवं संस्थाओं की दृष्टि से जातिगत पहचान मजबूत हुआ है और स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व, इसके दौरान और बाद में यह राजनीतिक लम्बाबंदी का एक हथियार बनने के कारण ऐसा संभव हुआ है। 19वीं शताब्दी के आरंभ समाजी धार्मिक आंदोलन ने निम्न जातियों को उनकी खराब हालत के प्रति सचेत भी किया है और वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक भी हुए हैं, जिनसे उन्हें सदियों से वंचित भी रखा गया है। परिणाम स्वरूप उनमें से अनेक अपनी दुर्दशा को भाग्य की देन मानने को तैयार नहीं थे। इस जागरूकता के फलस्वरूप शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होना स्वाभाविक बात था। कहते दल के केंद्रीय राजनीति का उदय एवं ब्रिटिश शासकों द्वारा मुसलमानों सहित पिछड़े और वंचनीय जातियों को बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन का हर्ष करने के लिए लामबंद करने का प्रयास ने जातियों के राजनीतिकरण का आधार तैयार किया। भारत की स्वतंत्रता के समय राजनीति के कारण ये जो है पिछड़ी जाति का ताकत बन चुकी थी। उनकी मांगे एवं हित अधिक दोनों तक ही टालने नहीं जा सकते थे। उसी समय जो है राष्ट्रवादी नेताओं ने भी उनकी दशा सुधारने का जो है बीड़ा उठाया। उपयुक्त के संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने भी सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उन्हें समाज में दूसरे के जो है समान स्थान में दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने समझा कि राज्य की सहायता के बिना उनके ऐतिहासिक पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए संविधान में आरक्षण की नीति अपनाई गई और पिछड़े वर्गों के जो अंतर्गत निम्न 3 वर्ग आते हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग जाति यानी ओबीसी। तो इसमें जो है महात्मा गांधी भी ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए हर संभव कोशिश किया और उन्होंने दलित का जो है उत्थान में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं हर धर्म के लोगों को जो है हमारे देश में जीने का अधिकार है। सभी कहते हैं कि धर्म जो है जाति पे आधारित होती है, लेकिन आज के समय में जो है ये जो है बंधन टूट चुकी है। आज जो व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने अच्छे कुशलताओं से, अपने ज्ञान से उच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं और समाज में इनकी विशेष स्थान भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, बहुत से ऐसे हैं जो दलित वर्ग से ही संबंध रखते हैं, जो कि इतने बड़े पद को प्राप्त कर चुके हैं।